सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना दबाव में है और वो सीमा पर संघर्ष विराम करके अपनी बौखलाहट निकाल रही है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर जारी संघर्ष विराम का कई जगहों 3 অক্টোবর 2016 সোমবার ভোরে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ফের গোলাগুলি হয়েছে। পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী গণসংযোগ দপ্তর আইএসপিআর এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরের লাইন অব দ্য কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন ইফতিখারাবাদে মধ্যরাতের পর ভারতীয় সেনারা বিনা উস্কানিতে গুলি চালায়। পরে এর জবাব দেয় পাকিস্তানি সেনারা। সোমবারে হামলার কোনো হতাহত হয়নি কোনো সেনা। এর আগে শনিবার নিয়ন্ত্রণ রেখা ভীমবার সেক্টরে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে গোলাগুলি হয়, সেখানেও কেউ হতাহত হয়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার বলেছেন, ভারত কোনো দেশকে আক্রমণ করে না, ভারত কখনো কাউকে আক্রমণ করেনি, করবেও না, তবে কেউ তা করলে উচিত জবাব দেবে ভারত। নরেন্দ্র মোদীর এই বক্তব্যের পর ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের হামলাকে উস্কানিমূলক মনে করছে অনেকেই। বিষয়টি মীমাংসার জন্য যখন দুই দেশের টেলিফোন আলাপ হচ্ছে, তখন আবার গোলাগুলি সবাইকে আতঙ্কগ্রস্ত করছে। और हमारी फोर्स मौजूद थी, उसने अपनी कार्रवाई Thank you. नहीं आ सकता, मेरे कैमरे में आ सकता है। मैं तेरे फायर QE 03 number 3 bearing 0464 mil घोष सभी 5 राउंड प्रिपेयर करो। नंबर 1 2 bearing 0466 mil
Our mounting aversion to the idea of Pakistan spending any money towards new-built F-16C D Block 52+ is no secret, and our strong support for the JF-17 Thunder is well established. As a general point, the greatest value of the JF-17, at least for Pakistan, does not rest in its performance, but in the reality that Pakistan has authority over the platform. By authority, we refer to the fact that the Pakistan Air Force PAF can configure the JF-17 according to its will. This is the most essential point. While the F-16 is inherently the superior platform in terms of performance and quality, the PAF does not have the luxury to push the Viper to its available potential. Just consider the fact that the PAF cannot readily integrate a high-off-bore sight Hobbs air-to-air missile arm onto its F-16S without U.S. approval of some shape or form. Even Hobbs arm that have been technically cleared for the F-16. হামলার ক্ষত শুকায়নি এখনো। 2 সপ্তাহের মাথায় আবারও হামলার শিকার হলো ভারতীয় সামরিক বাহিনী। বারামুল্লা জেলার রাষ্ট্রীয় রাইফেলস সেনা শিবিরে হামলা চালায় বন্দুকধারীরা। সেখানে বিএসএফ এর একটি ইউনিট রয়েছে। এতে আহত হয় নিতিন ও পুলবিন্দার নামে 2 বিএসএফ জওয়ান। হাসপাতালে নেয়ার পর মারা যায় নিতিন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে বিএসএফ এর সাথে যোগ দেয় সেনাবাহিনী। গত রাতে বিএসএফ এর ক্যাম্পে হামলা চালায় বন্দুকধারীরা। এতে 2 জওয়ান আহত হয়, যার মধ্যে একজন পরে মারা যান। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বন্দুকযুদ্ধ চলে। পরে সেনাবাহিনী ও বিএসএফ যৌথভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। After that, Army and BSF jointly repulsed the attack.
এই হামলার পর পাকিস্তান ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে 3 দফা গুলি বিনিময়ের খবর পাওয়া গেছে। এই ঘটনাকে পাকিস্তান সমর্থিত সন্ত্রাসীদের গুলির জবাব বলে উল্লেখ করেছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। যে কোনো হামলার জবাব দিতে সামরিক বাহিনী প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন তারই ডেপুটি। সারা ক্লিয়ারিং जो करना है বারামুল্লায় যা হয়েছে তা দুঃখজনক, তবে আমাদের সামরিক বাহিনী সব পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম। বারামুল্লায় হামলার পর ইসলামাবাদে নিজের বাসভবনে সব রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠক করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ। এর আগে নিয়ন্ত্রণ রেখায় উত্তেজনা কমাতে ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা একমত বলে খবর আসে গণমাধ্যমে, যেখানে বলা হয় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা নাসির জানজুয়া। এদিকে পাঞ্জাবের পাঠানকোট থেকে নরেন্দ্র মোদীকে হুমকি দেয়া চিরকুট সহ একটি কবুতর উদ্ধার করেছে বিএসএফ। উর্দুতে লেখা চিরকুটে বলা হয় 1971 সালের অবস্থা এখন পাকিস্তানের নেই। পাকিস্তানের প্রতিটি শিশুই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। উদ্ধার হওয়া কবুতরটি পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে। से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से अब तक 10 सीज फायर उल्लंघन हो चुके हैं में आए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के शाहपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ। रक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारी ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सुरक्षा बल सीमा पार से हो रही गोलीबारी का करारा जवाब दे रहे हैं। उरी हमले के बाद भारत की ओर से पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना दबाव में है और वो सीमा पर संघर्ष विराम करके अपनी बौखलाहट निकाल रही है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर जारी संघर्ष विराम का कई जगहों पर पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन किया जा रहा है। सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने 3 सेक्टरों में बिना किसी कारण गोलीबारी की। पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले में शाहपुर, केनी और सोजियान सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। आज सुबह 11 बजे से पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड सीजफायर वायलेशन किया है पुंछ सेक्टर में, शाहपुर के इलाके में, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। पाकिस्तान आर्मी ने जो है स्मॉल आर्म्स, ऑटोमेटिक्स और मोटार के गोले दागे हैं। किसी तरीके का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इस गोलीबारी में पुंछ में 5 नागरिक घायल हो गए हैं। इससे पहले रविवार को भी पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू जिले के पल्लनवाला सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में फायरिंग और गोलीबारी की। शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से अखनूर में नियंत्रण रेखा के पास मोर्टार बमों और भारी मशीन गनों से भारतीय चौकियों और असैनिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से संघर्ष विराम उल्लंघन की कुल 10 घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय निवासी इससे दहशत में हैं। जब फायरिंग बॉर्डर में करते हैं तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है घास वो हमारा सीजन का होता है। देखो हम घास काट रहे हैं इस वक्त भी, और हमारे गोले बजने से हमारे घास वो जा रहे हैं, सामने देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पंजाब की सीमा पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गुरदासपुर में बीती रात पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई। गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटी बीएसएफ चौकी पर देर रात गोलीबारी हुई। बीएसएफ के जवानों ने जब घुसपैठियों को ललकारा तो वो फायरिंग करते हुए वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए। पूरे बॉर्डर पे अलर्ट है। वहाँ पे हमारे सर्विलेंस इक्विपमेंट पे कोई मूवमेंट देखी गई थी, जिसपे तुरंत जो वहाँ पे ऑफिसर्स और हमारी फोर्स मौजूद थी, उसने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। वहाँ पे वर्तमान में पूरी तरह सुरक्षित है सारी चीजें और किसी प्रकार का खतरा नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठ की नाकाम कोशिश के बाद सोमवार सुबह बीएसएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस का कहना है कि इलाके में सुरक्षा और दुरुस्त की जा रही है। जो हमारी यहाँ की स्वाट टीम है, जो स्पेशलिस्ट है सर्च ऑपरेशंस की, उनके साथ शुरू की लड़ाई इसलिए जा रही है गांव वालों की सुरक्षा के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पंजाब के 6 सीमावर्ती जिलों के लगभग 1000 गाँवों को खाली कराने के आदेश भी दिए गए हैं। पूरी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा बल कड़ी सतर्कता बरत रहे हैं और किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जम्मू से संजीत खजूरिया और जालंधर से उषा पवार के साथ न्यूज टाइम टेस्ट, डीडी न्यूज।
बाद पाकिस्तान की ओर से अब तक 10 सीज फायर उल्लंघन हो चुके हैं। आज ही 4 ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के शाहपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ। रक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारी ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सुरक्षा बल सीमा पार से हो रही गोलीबारी का करारा जवाब दे रहे हैं। उरी हमले के बाद भारत की ओर से पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना दबाव में है और वो सीमा पर संघर्ष विराम करके अपनी बौखलाहट निकाल रही है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर जारी संघर्ष विराम का कई जगहों पर पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन किया जा रहा है। सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने 3 सेक्टरों में बिना किसी कारण गोलीबारी की। पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले में शाहपुर, केरनी और सोजियान सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आज सुबह 11 बजे से पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है पुंछ सेक्टर में, शाहपुर के इलाके में, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। पाकिस्तान आर्मी ने जो है स्मॉल आर्म्स, ऑटोमेटिक्स और मोटार के गोले दागे हैं। किसी तरीके का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इस गोलीबारी में पुंछ में 5 नागरिक घायल हो गए हैं। इससे पहले रविवार को भी पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू जिले के पल्लनवाला सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में फायरिंग और गोलीबारी की। शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से अखनूर में नियंत्रण रेखा के पास मोर्टार बमों और भारी मशीन गनों से भारतीय चौकियों और असैनिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से संघर्ष विराम उल्लंघन की कुल 10 घटनाएं हो चुकी है।